السلام علیکم۔ عاصم علی آفیشیل یوٹیوب چینل پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پیش خدمت ہے ایکشن، ایڈونچر اور فن سے بھرپور داستان۔ پاگل خانہ نمبر 7، قسط 21، ڈائننگ ٹیبل۔ حویلی، رات کا وقت، ڈائننگ ہال۔ بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کے گرد 7 لوگ بیٹھے تھے۔ رانو آپا سر پر دوپٹہ لے کر سب سے آگے۔ دائیں طرف حسن / شاہزیب اور کاشف۔ بائیں طرف عاصم علی، زین، گل عباس۔ سامنے مریم کھانا سرو کر رہی تھی۔ میز پر قورمہ، بریانی، کباب، نان، سلاد، رائتا، مٹھائی۔ 22 سال بعد پہلی بار گھر میں 6 پرکار کا کھانا پکا تھا۔ رانو آپا نے لقمہ توڑ کر کاشف کے منہ میں ڈالا۔ کھا بیٹا، تیرے لیے بنایا ہے۔ کاشف نے نوالا چبایا پر نظریں تینوں پر تھیں۔ عاصم، گل عباس، زین۔ اس نے پانی کا گلاس رکھا اور بولا، اماں ایک بات پوچھوں؟ رانو آپا مسکرائیں۔ پوچھ بیٹا۔ کاشف نے چمچ میز پر رکھ دیا۔ آواز بھرا گئی، آخر اب تینوں ہو کون؟ عاصم بھائی، گل عباس بھائی، زین بھائی۔ ہمارے لیے اپنی جان پر کیوں کھیل گئے؟ کہاں سے آئے؟ کیا رشتہ ہے ہم سے؟ 22 سال میں پہلی بار اپنا لگا ہے کسی کو دیکھ کر۔ بتاؤ نا اب ہو کون؟ سناٹا چھا گیا۔ حسن نے بھی نوالا روک لیا۔ مریم کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ رانو آپا نے تینوں کو دیکھا۔ زین کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے کہ عاصم علی نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ عاصم نے سامنے دیوار پر لگی پرانی گھڑی دیکھی۔ رات کے 9:15 ہو رہے تھے۔ عاصم علی نے گہری سانس لی۔ کاشف کی طرف دیکھا، مسکرا کر بولا، کاشف بھائی صبر کرو۔ گل عباس نے قورمے کا نوالا منہ میں ڈالا اور بولا، او پائیو، عاصم پائی ٹھیک کہتا ہے۔ پہلے پیٹ پوجا کر لے، خالی پیٹ فلسفہ سمجھ نہیں آتا۔ رانو آپا نے بھی کاشف کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بیٹا، پہلے کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، تیرے لیے بڑے چاو سے بنایا ہے۔ کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پر بھائی جان، نیند نہیں آئے گی جب تک سچ نہیں سنوں گا۔ 22 سال سے سوال دل میں ہے، آپ لوگ فرشتے ہو یا انسان؟ عاصم علی نے اپنی کرسی کاشف کے قریب کی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آواز میں اپنائیت، لہجے میں یقین۔ کاشف میری جان، تمہارا بھائی جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ کرتا ہوں۔ ڈنر کے بعد بتاؤں گا کہ ہم ہیں کون، ایک ایک کی کہانی، شروع سے لے کر آخر تک، بچپن سے لے کر آج تک، کوئی لفظ نہیں چھپاؤں گا۔ زین نے بھی سر ہلایا۔ ہاں کاشف بھائی، ڈنر کے بعد پوری تفصیل سے میری کہانی، عاصم بھائی کی، گل عباس کی، سب۔ گل عباس نے ہڈی چوستی ہوئی کہا، او پائیو، کہانی اتنی لمبی ہے کہ سناتے سناتے لنچ ٹائم ہو جائے گا کل۔ سب ہنس پڑے، ماحول ہلکا ہوا۔ حسن نے کاشف کو کوہنی ماری، چل بھائی، بھائیوں پر بھروسہ رکھ، کھانا کھا، اماں ناراض ہو جائیں گی۔ رانو آپا نے پھر لقمہ بنایا۔ ہاں بیٹا، کھا لو، کہانی بھاگ نہیں جائے گی۔ کاشف نے سر جھکا کر نوالا منہ میں رکھ لیا، پر آنکھیں اب بھی تینوں پر تھیں۔ مریم نے مٹھائی آگے کی، کھیر کھاؤ سب، منہ میٹھا کرو، آج خوشی کا دن ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے باتیں چلی۔ گل عباس نے جیل کے لطیفے سنائے، زین چپ چاپ سنتا رہا۔ عاصم ہر بات پر رانو آپا کو دیکھتا۔ حسن اپنے بھائی کاشف کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ رات 10:30 بجے کھانا ختم ہوا۔ رانو آپا اٹھی، چلو صحن میں چلتے ہیں، چاندنی رات ہے، وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سب صحن میں آ گئے۔ درمیان میں رانو آپا چارپائی پر، دائیں طرف حسن اور کاشف، بائیں طرف عاصم، زین، گل عباس۔ مریم چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ عاصم نے چائے کا کپ اٹھایا، کاشف کو دیکھا۔
तो काशिफ भाई डिनर हो गया, अब तैयार हो सच सुनने के लिए? काशिफ सीधा होकर बैठ गया। जी भाईजान, शुरू करें। एक एक लफ्ज। बचपन से। आसिम अली की कहानी, सिडनी से पागल खाना तक। आसिम अली ने चांद की तरफ देखा। आवाज में ठहराव था। मैं आसिम अली ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 1 मार्च 1994 को पैदा हुआ। 2010 में मैट्रिक का इम्तिहान दिया, पहली पोजीशन ली। 2010 से 2016 तक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से क्रिमिनोलॉजी एंड साइबर लॉ में बैचलर्स किया। दिन को यूनिवर्सिटी, रात को पैरामाटा के एक कैफे में काम। वालिद साहब टैक्सी चिल्लाते थे, वालिदा घर संभालती थी। 2016 जून फेडरल पुलिस सिडनी हेडक्वार्टर से कुछ अफसर हमारे यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स क्लब में आए। मैं बॉक्सिंग करता था। उन्होंने 50 लड़कों के टेस्ट लिए, फिजिकल, दिमागी, ज़बान। 8 सिलेक्ट हुए, मैं उनमें से एक था। अफसर ने कंधे पर हाथ रखा, आसिम अली, तुम्हें इंटरपोल के लिए तैयार करेंगे। 2 साल 2016 से 2018 तक कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कॉलेज। ट्रेनिंग, हथियार, साइबर क्राइम, अंडर कोर ऑपरेशन, इंटरोगेशन, 7 ज़बानें, रोज 16 घंटे। वालिद साहब हर इतवार फोन करते, बेटा वर्दी का वदा याद है? मैं कहता, जी वालिद साहब, बेगुनाह पर जुल्म नहीं करूंगा। 2018 मार्च ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। इंटरपोल एजेंट 007 का बीज मिला। पहला मिशन सौंपा गया। मिशन पाकिस्तान। टारगेट, पागल खाना नंबर 7 का ग्रुप। इल्जाम, ये ग्रुप मासूम लोगों को, यतीमों को, मरीजों को नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। 20 मार्च 2018 में पागल खाना नंबर 7 में दाखिल हुआ। गिल अब्बास और जैन भी मेरे साथ थे। मेरी कहानी यहाँ तक है, उगे आपको मालूम है अब गिल अब्बास। अलिफ गिल अब्बास ने लंबी सांस ली। आवाज में गुस्सा और दर्द मिक्स था। सुन काशिफ, बात 2017 की है। दुबई, गिल्ली नंबर 13। मैं रात 2 बजे घर जा रहा था। गिल्ली के मोड़ पर एक काला लैंड क्रूजर रुका। 3 बंदे। उन्होंने एक लड़के को गाड़ी से घसीटा। चाकू, 1, 2, 3 वार। लड़का गिर गया। मैंने कत्ल होते देख लिया। कातिल ने मुझे देख लिया। बोला, वो गवाह। उन्होंने मुझे पकड़ा, बोरी बंद, अगवा करके ले गए गोदाम। 7 दिन रस्सी से बांधा, मारते रहे। बोल किसको बताएगा? मैंने कहा, किसी को नहीं, पर वो सबूत मिटाना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। 7 और रात। एक गार्ड सो गया। मैंने कुर्सी से रस्सी रगड़ी, हाथ खिले, गार्ड की गर्दन पर मुक्का। वो गिरा, मैं भागा, मार धाड़ करके वहां से निकलने में कामयाब हो गया। खून से लथपथ उम्मी के कदमों में गिरा। किस्म खाई उम्मी में, इन कातिलों को कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे जान जाए। इंटरपोल में जाने के लिए क्या किया? 2017 अगस्त में दुबई पुलिस के पास गया, गवाही दी। उन्होंने कहा, सबूत लाओ। मैंने गोदाम की लोकेशन दी। पुलिस ने छापा मारा। खून के निशान, मेरी रस्सी। 2 कातिल पकड़े गए, 1 फरार, डॉक्टर जुल्करनैन। 2017 दिसंबर। इंटरपोल दुबई के अफसर मेजर हामिद ने मुझे बुलाया। बोला, गिल अब्बास तो बहादुर है, कातिलों के खिलाफ खड़ा हुआ, हमारे साथ काम करेगा। मैंने कहा, साहिब मैं 8 पास हूं, चूर हूं। वो हंसा, इंटरपोल को डिग्री नहीं, दिल चाहिए। 2018 जनवरी। इंटरपोल ने मुझे इन्फॉर्मर भर्ती किया। ट्रेनिंग 2 महीने। हथियार, चिल्लाना नहीं, मालूमात निकालना, खुफिया कैमरा रिकॉर्डिंग, कोड वर्ड। 2018 मार्च। मेजर हामिद ने कहा, गिल अब्बास डॉक्टर जुल्करनैन पाकिस्तान भागा है, पागल खाना नंबर 7 में छुपा है, तजर्बे कर रहा है, तुझे वहां गार्ड बनकर जाना है। एजेंट आसिम अली लीड करेगा। 20 मार्च 2018 में पागल खाना नंबर 7 में गार्ड बनकर दाखिल हुआ।
आसिम अली और जैन भी मेरे साथ थे। मकसद एक डॉक्टर जुल्करनैन को पकड़ना, बेगुनाहों को बचाना, उम्मी से क्या वदा पूरा करना। गिल अब्बास ने मुट्ठी बंद की, मैं चूर था। अब इंटरपोल का इन्फॉर्मर हूं, डॉक्टर जुल्करनैन का शिकारी। अब जैन की बारी। जैन अल आबदीन ने चाय का कप नीचे रखा, काशिफ की तरफ देखा। आवाज में दर्द था पर लहजा मजबूत। मेरी कहानी सुन काशिफ, हंसना नहीं, रोना भी नहीं। जैन अल आबदीन की कहानी, वकील से इंटरपोल तक। मैं जैन अल आबदीन, 1996 लाहौर गवालमंडी में पैदा हुआ। अब्बा इंस्पेक्टर अहमद, थाना कला गुज्जर सिंह में थे। ईमानदार, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। उम्मी घरेलू, मुझे कुरान पढ़ाती थी। 2004 अब्बा ने शहर के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ पर्चा काटा। इल्जाम, सरकारी जमीन पर कब्जा। अगले हफ्ते अब्बा का ट्रांसफर करवा दिया गया, सजाए के तौर पर मुजफ्फरगढ़ भेज दिया। मैं 8 साल का था। उम्मी ने कहा, बेटा तेरे अब्बा ने सच बोला, सजा मिली। मैंने इस दिन किस्म खाई, वकील बनूंगा, अब्बा जैसे ईमानदारों का केस लड़ूंगा। 2014 पंजाब यूनिवर्सिटी ला कॉलेज, LLB में दाखिला। दिन को यूनिवर्सिटी, रात को ट्यूशन। अब्बा की तनख्वाह आधी हो गई थी। उम्मी को शुगर थी। दवाई के पैसे मैंने कमाए। 5 साल LLB में टॉप किया। 2019 में वकील बन गया। 2020 अब्बा की पुरानी फाइल ढूंढनी शुरू की। सेशन कोर्ट लाहौर, पुराना रिकॉर्ड रूम। क्लर्क ने कहा, 2004 की फाइल, वो तो डॉक्टर जुल्करनैन ले गया। कहता था पुलिस रिसर्च के लिए चाहिए। डॉक्टर जुल्करनैन का नाम पहली बार सुना। पता किया, गुलबर्ग में क्लिनिक है, बड़ा न्यूरो सर्जन। 2021 जनवरी में क्लिनिक गया। बोला, डॉक्टर साहब मेरे अब्बा इंस्पेक्टर अहमद की फाइल। वो मुस्कुराया, वकील साहब फाइल चाहिए, मेरे साथ काम करो, मेरे रिसर्च सेंटर में लीगल एडवाइजर बन जाओ, तनख्वाह 5 लाख। मैंने इनकार किया, डॉक्टर साहब में बकने वाला नहीं। वो बोला, देखते हैं। 2021 मार्च मुझे एक केस मिला, यतीम खाने के बच्चों की जायदाद का। मुखालिफ पार्टी, डॉक्टर जुल्करनैन। मैंने केस जीत लिया। डॉक्टर को 2 करोड़ का जुर्माना हुआ। 2021 जून रात 12 बजे 4 लोग घर आए, मुझे उठाया, बोरी बंद, अगवा कर लिया, पागल खाना नंबर 7 ले गए। इंजेक्शन, होश आया तो जंजीर में था। तख्ती, तजर्बा नंबर 9, जैन अल आबदीन। 2021 अगस्त नया वार्डन आया, आसिम अली। इसने मेरी फाइल देखी, LLB की डिग्री। बोला, जैन अल आबदीन वकील होकर यहाँ। मैंने कहा, इंसाफ का केस लड़ा था, खुद मुजरिम बन गया। आसिम अली रात 2 बजे आया, हाथ में मेरा वकालत का लाइसेंस। बोला, जैन अल आबदीन तो वकील है, पागल नहीं, मेरे साथ काम करेगा। इंटरपोल में एंट्री कैसे हुई? 2022 जनवरी आसिम अली ने इंटरपोल हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेजी। जैन अल आबदीन, विक्टिम गवाह और लीगल एक्सपर्ट, डॉक्टर जुल्करनैन केस का अहम सोर्स। 2022 मार्च इंटरपोल लियोन से मेजर सोफिया आई, मेरा इंटरव्यू लिया। 3 घंटे, कानून सबूत गवाही। आखिर में बोली, जैन अल आबदीन आपको इंटरपोल लीगल एडवाइजर भर्ती करते हैं। कोड नीम, एजेंट वकालत। 2 साल 2022 से 2024 मैंने इंटरपोल के साथ खुफिया काम किया। पागल खाना नंबर 7 के अंदर से सबूत जमा किए। 23 विक्टिम्स की फाइलें, डॉक्टर जुल्करनैन की ऑडियो वीडियो, पैसों का रिकॉर्ड। ये थी हम तीनों की हिस्ट्री। रात बहुत हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। स्टोरी पर तज्जिए कल नाश्ते के बाद करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।